Good morning students, welcome again in digital classes. And in previous video we have discussed about the DUG test of 2, 3 and 4. And dear student, now I am telling you that the next type of DUG test means DUG test of 5, then we will study about the DUG test of 6, after that 7, 8, 9, 10 and 11. Okay, these are very important DUG tests for all the classes. So watch it carefully and learn it the proper concept of these numbers. Okay, which type of questions arises from this topic I am telling you. Okay, according to the concept. So now we will discuss here divisibility test of 5. Divisibility test of 5 means how can we say the given number is exactly divisible 5? Means by the observation. Number को देखा बता दिया yes sir this is divisible by 5. How? So we have need to learn this concept. If the last digit of a number is either 0 or 5 मीन्स कोई भी नंबर होता है उसका यदि लास्ट डिजिट या तो वो 0 या फिर क्या होता है 5। अब यहाँ पे कुछ आप समझेंगे कि लास्ट डिजिट का मतलब क्या है। लास्ट डिजिट मीन्स आपको मतलब ये लेना है कि जब आप राइट साइड से चलते हैं तो वंस प्लेस और लेफ्ट साइड से चलते हैं तो लास्ट, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल 5450, 3475, 2125, 3400. Dear student, here look that last digit is here. Here last digit is 0, here 5 and here 0. So direct we can say these numbers are exactly divisible by 5. Means how question comes, check the given numbers, check the given numbers are divisible by 5 or not. आपको चेक करना है, जस्ट चेकिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको राइट करना है यस इट इज डिविजिबल, इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5. इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 बिकॉज इट्स लास्ट डिजिट इज 0. इतना सा आपको वे राइट करना है, सिंपल वे में आपको राइट करना है. ओके, एंड फॉर दिस यू कैन राइट यस इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 बिकॉज इट्स लास्ट डिजिट इज 5. फॉर दिस यस इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 बिकॉज इट्स लास्ट डिजिट इज 5. सो इन दिस वे यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिट टेस्ट ऑफ 5. ओके स्टूडेंट, फॉर नेक्स्ट divisibility test of 6. Okay, divisibility test of 6. Now I am telling you means how can we say the given number is exactly divisible by 6. So for that this is very simple. Why? Because we know very well about the digit test of 2 and 3. If you know very well about the digit test of 2 and 3, so you easily solve this digit test of 6. How? Check here. If the given number is any number you can say, if the given number is exactly divisible by 2 and 3 both, so that number is always exactly divisible by 6. मीन्स यदि आपको 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, राइट है, तो इसका मतलब वो किससे होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए. मैंने यहाँ पे बहुत इसलिए लगाया है, बहुत का मतलब दोनों से होना चाहिए. आप ये नहीं कह सकते सर 2 से हो रहा है 3 से नहीं हो रहा है. यदि 2 से हो रहा है 3 से नहीं हो रहा है एग्जैक्टली डिविजिबल, तो इट मीन्स ये 6 से भी नहीं होगा.
मीन्स कंडीशन अप्लाई आपके पास है कि 6 से डिविजिबल नंबर वही होगा जिसमें ये 2 का भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 का भी डिविजिबल होना चाहिए, राइट। डिवाइड कंप्लीटली होना चाहिए उसका। एग्जाम्पल से आप इसको इजीली मैं आपको बता सकता हूँ, ध्यान से देखना। 3 4 5 0 3 4 5 0, check here 3450 it is divisible by 6 or not, ये अपने को चेक करना है। So for the 6, first we check 2, divisor test of 2, after that we check divisor test of 3. If both conditions are satisfied, so we can say yes, it is divisible by 5, right? First we will check for 2, divisor test of 2. So I told you what about the divisor test of 2 means if the last digit of number is 0, 2, 4, 6 or 8, right? So here last digit is 0, so it is divisible by 2. So we can write it is divisible by, एग्जैक्टली आप राइट कर सकते हैं, इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, राइट। और रीजन आप लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इट्स लास्ट डिजिट इज 0, बहुत अच्छी बात है। उससे क्या हो जाता है, आपकी कॉन्सेप्ट लर्न रहता है, आपको डिजिट टेस्ट की टर्म है जो नोटिस जो आपको पॉइंट दे रखा होता है वो लर्न होता है कि यस वाई दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2, ओके। सो नोट डाउन प्रॉपर, ओके। आफ्टर दैट पॉइंट नंबर सेकेंड, इट इज फर्स्ट। अब डायरेक्ट 3 के लिए तो आप डायरेक्ट बता नहीं सकते, 3 के लिए क्या बताया मैंने, आई टोल्ड यू नो डिजिट टेस्ट ऑफ 3 द सम ऑफ डिजिट, तो राइट हियर द सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स मीन्स यहाँ पे जो डिजिट दे रहे हैं इनका सम करें, कितना आएगा 3 + 4 + 5 + 0 इक्वल टू टोटल इज 12 है। द सम ऑफ डिजिट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, यस और नो। सम कितना आया 12 है, 12 और 3 से डिविजिबल होता ही नहीं होता है, होता है मीन्स इस ये नंबर भी क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। देन 3450 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, राइट। नाउ यूजिंग दीज 2 स्टेटमेंट्स मीन्स ये 2 से भी हो रहा है 3 से भी हो रहा है, सो एट लास्ट या फाइनली यू कैन से देयरफॉर 3450 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, राइट स्टूडेंट। अगेन चेक for 6, हाउ टू चेक द डिविजिट टेस्ट ऑफ 6। डिविजिट टेस्ट ऑफ 6 कैसे चेक करें, उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले लर्न करें कॉन्सेप्ट। डिविजिट टेस्ट 6 के लिए आपको इम्पोर्टेंट है कि जो नंबर जिस नंबर का आप डिविजिट टेस्ट 6 चेक कर रहे हैं उनके लिए कंडीशन है अप्लाई 2 का भी डिवाइड होना चाहिए उसमें और 3 का भी डिवाइड होना चाहिए, राइट। सो फर्स्ट वी विल चेक फॉर 2, आफ्टर दैट वी विल चेक फॉर 3, राइट। इफ बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड, right, so finally we can say these numbers are exactly divisible by 6. I hope you are getting my points, okay. Next, so I hope again check division test of 5 and division test of 6. Dear student, now I am telling you the next type of division test, that is 7, okay. I am telling you the successive numbers, okay, otherwise by the cumulative form I can also tell, but at last I will explain you the relationship between the numbers and their division test, okay, finally. But now I am telling the division test of 7. Note down these things in your rough notebook, okay, and make the examples and solve it properly. Division test of 7, this is very important, okay, and what we will have to do to solve it. First, one by one I am writing the steps here. First, take the last number, means step first क्या क्या करें, take the last number, last digit. अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सेलेक्ट कर लो आप, चूज कर लो आप, ठीक है, राइट, अंडरलाइन कर लें, लास्ट डिजिट को आपको अंडरलाइन करना है, ओके। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 2 में क्या करना है आपको, स्टेप नंबर 2 में आपको करना है डबल इट मीन्स आपको इसका क्या करना है, डबल करना है। डबल मीन्स आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से करना है, ओके।
नंबर थर्ड, subtract the result from the rest number, मीन्स आपको जो नंबर आता है डबल करने के बाद में उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किस में से, रेस्ट नंबर जो बच जाता है उसमें से। ओके, एंड लास्ट एंड फाइनल, देखो ये 7 का डिजिट टेस्ट है वो आपको ये लगेगा इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना नहीं है जितना आप सोच रहे हो। आप थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, सीक्वेंस में राइट करेंगे ना कि अपनी को क्या करना है, पहले लास्ट नंबर चूज करना है, उसके बाद में उसका डबल लेना है। तो ये माइंडली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। वी हैव चूज द लास्ट नंबर, आफ्टर दैट डबल इट, नाउ सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द रेस्ट नंबर, मतलब जो बच गया, राइट। एंड आफ्टर दैट इफ द आफ्टर द सब्ट्रैक्शन, आफ्टर द सब्ट्रैक्शन इफ द रिमाइंडर, आप इसमें यह कह सकते हैं, राइट। सब्ट्रैक्शन किया तो क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, राइट। तो सब्ट्रैक्ट आफ्टर द सब्ट्रैक्शन इफ द रिमेनिंग वैल्यू इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7, राइट। क्या करें हम, सब्ट्रैक्ट करें और उसमें क्या करें, सिर्फ 7 का आप क्या दें, डिवाइड दें। सब्ट्रैक्शन में या तो क्या आएगा, वो 0 आएगा, रिमाइंडर या तो क्या रहेगा 0, या फिर वो क्या होगा 7 का मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल्स ऑफ 7। ओके, so if the remaining value is exactly divisible by 7, so we can say that the given number is exactly divisible by 7। एग्जाम्पल से समझे, देखो एक बार आप। नाउ 343, ओके 343, डियर स्टूडेंट, ये टेल मी द टेक द लास्ट डिजिट, मीन्स यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, अंडरलाइन कर लें आप इसको कॉन्सेप्ट में। फर्स्ट पॉइंट पे आपने क्या ले लिया, 3। नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, डबल इट। डबल मीन्स 3 का डबल करें आप, 3 का डबल करने का मतलब हो गया 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, कितना हो गया 6। फिर क्वेश्चन नंबर स्टेप थर्ड में क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करना है किसको, द रिजल्ट को। रिजल्ट कौन सा आया 6 फ्रॉम द रेस्ट नंबर कौन सा रह गया, देखो 3 को आपने नोट कर लिया, रिमेनिंग नंबर कौन सा हो गया 34 माइनस 6, तो कितना हो गया 28। रेस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट किया, रिजल्ट क्या आ गया आपके पास 28। इफ रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7, राइट। आप इसमें नोट कर सकते हैं यहाँ पे, इफ रिजल्ट, यहाँ से नोट करें आप इजी से, कोई दिक्कत नहीं है। इफ रिजल्ट इज 0 और मल्टीपल्स ऑफ 7, इफ द रिजल्ट इज 0, या तो आपके पास जो सब्ट्रैक्शन जो वैल्यू हम रहते हैं, या तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, या फिर वो 7 का मल्टीपल आना चाहिए, राइट। सो वी कैन से, अब देखो यहाँ पे 28 आ रहा है, सो वी कैन से स्टेप नंबर 4, 28 इज द मल्टीपल ऑफ 7, राइट। कह सकते हैं ना, 28 में 7 का डिवाइड होता ही नहीं होता है, इट मीन्स 343 में भी क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ओके, अगेन चेक फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम टेलिंग यू हियर how can we check the digit test of 7 and how to write the solution. Now I am telling you, first using this statement, okay, using this statement you can write, we take the last digit 3, after that we take it double, now we subtract 6 from the 34, सिंपल सा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लैंग्वेज तो आपको राइट करनी है, सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट क्या है 6, उसको द रिजल्ट की जगह आप क्या नोट करें 6 फ्रॉम द रेस्ट नंबर कौन सा रहा था, उसकी वजह आप लिख दिया 34। आफ्टर दैट इफ रिजल्ट इज 0, तो आपके रिजल्ट कितना आया सब्ट्रैक्शन के बाद में 28, तो आप 28 के बारे में क्या लिख सकते हैं, 28 इज द मल्टीपल ऑफ 7, सो इट इज द एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7, सिंपल सी फॉर्म। ओके, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 7 के काफ़ी टिपिकल महसूस होता है बट ईजी है, जहाँ तक मेरे को लगता है। आपकी राय कैसी है वो आप मेरे को बता देना। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसके लिए भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि इसका इसमें भी सेम इसी वे से हम सॉल्यूशन करेंगे, डिफरेंट टाइप का लेंगे नहीं।
ओके, कितना लेते हैं बताओ? 742, ये ले लेते हैं 742. Dear student, here last number is, step by step I am telling you, last number is here 2. Take the last digit, okay. Second, डबल इट मीन्स इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 4. नेक्स्ट, सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द रेस्ट नंबर. तो रिजल्ट कितना है अपने पास 4, उसको सब्ट्रैक्ट किस में से करना है? रिमेनिंग नंबर से. सो रेस्ट नंबर इज 74 माइनस 4. रिजल्ट कितना आ गया अपने पास 70. अब बताओ 70 क्या है? 70 जीरो है या मल्टीपल ऑफ 7? आप कहोगे यस सर 70 इज द मल्टीपल ऑफ 7. सो राइट हियर 70 इज मल्टीपल of 7. That's why 742 is exactly divisible by 7. I hope you are getting my points. Okay, so in this way you can easily check the digit test of 7 using these steps. Note down these things, note down these steps in your rough notebook and fair notebook and try to solve other type of examples. Okay, I am telling you 3 digit, you can check for 4 digit also, 5 digit, 6 digit, no problem. All for all it is this digit test is applied. Okay, now I am telling the digit test of 8, right? What is saying digit test of 8? This is the similar to the digit test of 4. Now I am telling the relation between the digit test one by one. रिलेशनशिप का मतलब हर आइटम को दूसरे आइटम से क्या करना, कनेक्ट करना, कि इस एक के अकॉर्डिंग हम दूसरे को लर्न इजीली कर सकते हैं, राइट? पॉजिटिव लर्निंग जिसको हम बोलते हैं. पॉजिटिव लर्निंग का मतलब समझते हैं आप? साइकिल चलाने वाला इजीली से क्या चला सकता है, बता सकते हो आप? मोटरसाइकिल आराम से चला सकता है, नहीं चला सकता? चला सकता है. और जिसको मोटरसाइकिल यदि आती है चलानी, वो क्या चला सकता है? 4 व्हीलर भी चला सकता है, चला सकता है. मीन्स पॉजिटिव लर्निंग में क्या होता है, एक आइटम को दूसरे आइटम से क्या करते हैं, हम रिलेट करते हैं, ठीक है, उसके साथ रिलेशन बनाते हैं. सो नाउ डिजिट टेस्ट ऑफ 8. अब आपको मैंने इसको किसके सिमिलर बताया? 4 के अकॉर्डिंग, डिजिट टेस्ट ऑफ 4. तो आप एक बार मेमोरी में अपनी फिट किया हुआ मटेरियल उसको वापस थोड़ा सा बाहर लेके आए कि 8 के 4 का जो था वो क्या था. 4 के अंदर हम देखा था कि द लास्ट 2 डिजिट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4. सो दैट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4, राइट? मीन्स लास्ट 2 डिजिट, बट फॉर 8 वी विल चेक हियर लास्ट 3 डिजिट. सिंपल सा. 4 के लिए 2 डिजिट, 8 के लिए कितने डिजिट होने चाहिए? 3 digit. Okay, so we write here if the last 3 digit is exactly divisible by 8, then whole number में यहाँ पे राइट कर देता हूँ ना, whole means complete, then particular number, then it is exactly divisible by 8. ओके स्टूडेंट, मीन्स यदि किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट का हम एक ट्रिपलेट बनाते हैं, राइट है, बनाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं 3 नंबर्स का, और उसमें हम 8 का डिविजिबल देते हैं, डिवाइड देते हैं, यदि वो एग्जैक्टली हो जाता है, मीन्स रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर क्या होता है, 8 से डिविजिबल होगा. ओके, चेक एग्जाम्पल. एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, देखो कितना लोगे, 1048, 1048, 1048. डियर स्टूडेंट, ये लास्ट 3 डिजिट्स आर कौन कौन से हैं? ये लो, इसको मैंने सर्कल किया है. सर्कल के अंदर जो है वो लास्ट 3 डिजिट है, आप नोट कर सकते हैं. 048 लास्ट 3 डिजिट है, इसमें आपको क्या करना है, डिवाइड देना है. आप डायरेक्ट दे देते हैं, बहुत अच्छी बात है, और इस वे से दें तो कोई दिक्कत नहीं. सो 048 का मतलब कितना हो गया, 48 ही हुआ, राइट? इसमें से आपको किस में डिवाइड देना है, 48 में डिवाइड. सिंपल है, 8 6 या 48, डिविजिबल क्या हो गया, कंप्लीट, एग्जैक्टली हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है. आप क्या कहेंगे, यस. हाउ टू राइट द सॉल्यूशन? The last 3 digit, the last 3 digits 048 is exactly
divisible by 8, then it means यहाँ पे क्या है 1048 is exactly divisible by 8. Exactly divisible by 8. In this way you can write this solution. Okay, for next example, check it again. (72 64) 72 64 means 7264. Dear student, here last digit number is 264, राइट. लास्ट 3 डिजिट में कौन से हैं? 264 है. आप इसमें डिवाइड दोगे, इसी वे में दोगे. 264 डिवाइडेड बाई 8. सो फर्स्ट वी डिवाइड in 26 by 8, so 3 times 8 3 is 24, right. Remainder is 2, bring down 4. Now start divide, so we will get 3 times 8 3 is 24, remainder is 0, means 33 times ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, मतलब डिविजिबल कंप्लीट हो जाता है ना, एग्जैक्टली रिमाइंडर आ जाता है. सो आप क्या कहेंगे, ये इस नंबर में भी क्या होगा, 8 का डिविजिबल होगा, राइट. नाउ फॉर नेक्स्ट डिजिट टेस्ट, that is digit test of 9, and digit test of 9 is very important. Why? Because this is the similar to 3. अब आप कह रहे हो सर आप साथ साथ जैसे बताइए तो उनको नोट करते जाना. आप 4 और 8 को आप एक साथ लर्न कर सकते हैं, 3 को किसके साथ लर्न कर सकते हैं, 9 के साथ. यदि आपको 9 लर्न है तो 3 भी लर्न है. ओके, देखो 9 का क्या कहते हैं वो देख लेते हैं हम. डिजिट टेस्ट ऑफ 9. ओके, we will discuss today only 9 and 10, and tomorrow otherwise you can say next video we will discuss the digit test of 11 and the specific examples related to the digit test. Okay, so digit test of 9 means simple sir, the sum of digits. अब याद करोगे, 3 में भी मैंने यही लिखा है, 3 में भी लिखा है the sum of digits. The sum of digits is exactly divisible by 9. Exactly divisible by 9. और उसमें क्या लिखा मैंने, 3 में 3 लिखा होगा, राइट. सेम ये कॉन्सेप्ट, बस इतना याद रखना, द सम ऑफ डिजिट इज एग्जैक्टली divisible by 9, so that number is always divisible by 9. सेम वे एग्जाम्पल आप नोट करोगे तो कितना आएगा, नोट करें आप. 9261. Okay, it is exactly divisible by 9 or not? First we check. So how to write the solution? Simple. The sum of digits 9 plus 2 plus 6 plus 1 total is 18. आप बताओ 18 9 से डिविजिबल होता है नहीं होता है, डिवाइड होता है 9 का, होता है. सो राइट करें, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, देन इट मीन्स 9261 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9. ओके स्टूडेंट, you can take one more example for here. Okay, that is 3459. Dear student, check here the sum of digits. Now add them. 3 plus 4 plus 5 plus 9 total is, check, 5 9 and 9 18 21. Okay, 21. Now you tell me 21 is exactly divisible by 9 or not? So you can say yes sir, it is not exactly divisible. So right here the sum of digit is not exactly divisible by 9. Then 3459 is not exactly divisible by
9. Okay, so in this way you can easily write the solution of the DUGT test of 9, right? How to write the solution and what is the concept I told you. Now and final, and for today's video the final DUGT test, that is 10, and this is the similar to 5, मीन्स 5 और आप 2 का भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स लैंग्वेज फॉर्म उनका सेम रहेगा, सिमिलर का नहीं है, मतलब ये नहीं कहना कि सर सेम ही होते हैं, वो सेम नहीं होने का मतलब यहाँ पे सिमिलर का वर्ड मैं इसलिए यूज ले रहा हूँ कि आप ये कह सकें कि इनकी लैंग्वेज मीन्स हाउ टू राइट द सॉल्यूशन, ओके, एंड जो कॉन्सेप्ट है डेफिनेशन का वो क्या आता है, सेम ही आता है। 10 के लिए हम फाइनली हम बात कर लेते हैं। डिजिट टेस्ट ऑफ 10, द लास्ट डिजिट इज 0। सिंपल सा है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, वंस प्लेस क्या होना चाहिए, 0। दैट नंबर या यू कैन से दिस नंबर ऑलवेज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 10। 10 का सिंपल सा फॉर्म है, लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए, 0। 0 आता है तो क्या होते हैं, वो 10 से डिविजिबल होते हैं, 0 नहीं आता है तो वो 10 से डिविजिबल नहीं होंगे, राइट। अब आप देखो 0 के कॉन्सेप्ट कौन कौन से में है, 2 वाले में भी 0 आया, 5 वाले में भी 0 आया, 10 वाले में भी क्या आ रहे हैं, 0 आया। तब मैंने आपको सिमिलर बोला है, सेम लैंग्वेज आपको बताइए कि 2 के लिए भी हम 0 देखते हैं, 5 के लिए भी 0 देखते हैं, 10 के लिए भी क्या देखते हैं, 0 देखते हैं। तब इसीलिए क्या होता है कि इनको सेम लेवल में आप राइट कर सकते हैं कि आपको डिविजन टेस्ट लर्न करने तो 2, 5 और 10 का एक साथ लर्न कर लें, 3 और 9 का एक साथ लर्न कर लें, 4 और 8 का एक साथ लर्न कर लें, रहा 6 को सिंपल सा है 2 और 3 के साथ कर लें, ओके। अब आपके पास एक कौन सा रह गया, 7, ये लो, इसको अलग से करना ही है क्योंकि है ही अलग ही। तो इस वे में आप इजीली क्या कर सकते हैं, डिजिट टेस्ट को क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। और एग्जांपल आप डिजिट टेस्ट 10 के लिए चेक करें, 3 4 5 0, लास्ट डिजिट 0, सो इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल 5, एंड 5 4 6 0, इसके लिए भी आप क्या बोलेंगे, लास्ट डिजिट 0, सो इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 10, राइट। I hope you are getting all the points related to this video, okay, according to digit test of I think 5 6 7 8 and 9 and 10, okay, and these are very important for all the classes and for competitive classes, okay. So learn the proper concept, okay, and give your best. Thank you for watching.